أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ، اس کتاب میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بار آپ سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ جی کلاس، لاسٹ ہم نے جو ہمارا لیسن 1 تھا اس میں قریب کے اشارے، قریب کا اشارہ، جملہ اسمیہ اور اسماء استفہام، حروف استفہام کی پریکٹس کی تھی۔ آج لیسن 2 میں یہ دور کا اشارہ، ذالکا، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور پریکٹس کریں گے کہ یہ کس طرح سے جملوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پلیسمنٹ کس طرح کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ریویژن ہے، آپ لوگوں کی پریکٹس ہے، تو آئیے ہینڈ ریز کیجئے، میکسیمم پارٹیسپیٹ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کی اگر کوئی ہڈن کنفیوژن ہے کسی قسم کی بھی تو وہ کلیئر ہو۔ جب آپ کی ٹرن آ جائے تو پھر ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے تاکہ میکسیمم لوگوں کو موقع مل سکے پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ سائمہ ندیم، جی دیکھیے میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے آپ کو، جی آئیے۔ کیا لکھا ہے الس- سائمہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ لیسن یس 2 کا میم۔ نام کیا آپ کو الدرس نظر الثانی آ رہا ہے؟ ذالکا، وہ۔ دالے کا، وہ۔ مجھے بتائیے یہ قریب کا اشارہ ہے یا یہ دور کا اشارہ ہے؟ میم یہ بعید کا اشارہ ہے، دور کا۔ بعید کا اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دور واقع ہے، ایسی ہی بات ہے نا؟ یس میم۔ دور ہو تو آپ ذالکا کا اشارہ استعمال کریں گی۔ ذالکا کا اشارہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے یا مذکر کے لیے؟ میم مذکر کے لیے۔ واحد کے لیے ہوتا ہے یا جمع کے لیے؟ میم واحد کے لیے۔ گڈ۔ اگر میں کہوں کہ آپ مذکر اور جمع میں اس کو کنورٹ کر دیں دور کے لیے تو کیا کریں گی اگر عاقل ہے تو؟ میم کیونکہ نجمن جو ہے یہ تو نہیں، عاقل، غیر عاقل اگر عاقل ہے، ہے، عاقل کی اور میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ ابھی تو یہ واحد ہے، اگر یہ جمع ہوگا نجومن تو پھر بھی تل کا لگے گا۔ نہیں، میں آپ سمجھی نہیں، ابھی ہم اس طرف تو پہنچے ہی نہیں ہیں، یس میم۔ ٹھیک جی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں ذالکا واحد اور مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں جمع مذکر اگر کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گی ذالکا کو؟ آپ جمع مذکر کرنا چاہیں گی تو ہاؤلائی۔ ہاؤلائی تو قریب کا ہو جائے گا، اولائی کا، سوری میم۔ اولائکا، جی ٹھیک ہے، سوری، گڈ، ایون کوئی کہ بات مجھے نہیں۔ آتا تھا بٹ آئی نو، کنفیوز آئی ہو نو، گئی۔ کوئی بات نہیں۔ بیچ میں سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ وہ آپ کو ایک دم رجسٹر ہو جائے، آپ کے ذہن میں یس بیٹھ میم، جائے، ٹھیک ہے۔ یس جب ٹھیک ہو ہم گیا۔ جب ہم گریڈ پڑھتے ہیں لائن سے، ذالکا، زانکا، اولائکا، تو وہ فلو میں نکلتا یس ہے مجھ میم، سے، ہے نا؟ یس میم، ایسے لیکن جب میں آپ سے درمیان سے پوچھوں گی تو آپ کا دماغ رجسٹر کرے گا، ایک دفعہ غلطی کریں گی کوئی بات نہیں، لیکن وہ پھر پکا ہو جائے گا، رجسٹر کر لے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو میں آپ سے کہوں ذالکا کو واحد مؤنث کر دیں تو کیا کریں گی؟ میم تل کا۔ تلکا۔ اور اب اس تلکا کو میں آپ سے کہوں کہ جمع مؤنث کر دیں تو کیا کریں گی؟ جمع مونس میم اولائی کا۔
उलाइका, यानी उलाइका मोन्नस और मुजक्कर दोनों के यस लिए इस्तेमाल होगा बईद के इशारों में, ऐसे ही है ना? यस मैम। ठीक है, यस चलें अब मुझे ग्रिड सुनाएं, इशारे की अस्माए इशारा सुनाएं, मैम। करीब के भी और दूर के भी। मैम जालिका, जानिका, हा, नहीं, करीब अच्छा के भी करीब के। और दूर के भी, हाजा, दोनों। हम्म। हाजा, हातानी, हा सॉरी हम्म। मैम, सॉरी। हम्म। हाजा, हम्म। हाजानी, हम्म। हाउलाई, हम्म। हाजिही, हम्म। हातानी, हाउलाई, हम्म। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, हम्म। तानिका, उलाइका। शाबाश, वेल डन। अब आपने जो हाजानी, हातानी, जानिका, तानिका ये यस मैम। इशारे इस्तेमाल किए, ये इशारे यस मैम। किस के लिए इस्तेमाल होते हैं? वाहिद के लिए, जमा के लिए, या तस्निया के लिए मैम। मुसन्ना के लिए? यस मैम। हाजानी, हातानी, यस मैम। जानिका, तानिका, जानिका। तानिका। ठीक है। यस अच्छा, मैम। ये तमाम मुसन्ना के इशारे हैं। मुझे एक बात ये बताइए कि हाजा, हाजही, इनका एराब क्या है? रफा है, नसब है, या जर है? मैम एक दफा दरमियान में फिर बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई, दरमियान में कॉल आ हाजा, गई थी। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, यस मैम। इनका एराब क्या है? मैम इनका रफा, इराब नसब, मरफू या है। जर? अच्छा, रफ लास्ट क्लास में थी आप? यस मैम मैं थी। अच्छा, हमने क्या समझा था कि अस्माए इशारा क्या होते हैं, उनकी इराब क्या होती है? अ, मैम वो वो आइए मरफू उम्मे हालत में सलमा, होती। उम्मे यस सलमा मैम। आइए, अभी हम देखते हैं इसको। जी यस मैम। सलमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या होते हैं ये इशारे, हमने क्या पढ़ा था? इराब क्या होता है इसका? जी मैम, मैं आधी क्लास में ही थी लास्ट टाइम में। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, मौरिफा आपने जो होते अभी, हैं जी, ये तमाम इशारे ये होते हैं मौरिफा। हम्म। अब देखिए, सुनिए, हाजा, हाउलाई, हाजिही, हाउलाई, अभी मैं मुसन्ना के इशारे नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जी मुसन्ना के इशारे हटा के मैं बात कर रही हूँ आपसे। हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, और हाउलाई, और उलाइका, ये इशारों का एराब अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगी कि ये मबनी होते हैं, जी यानी ये जिस जगह बैठेंगे उस जगह की पोजीशन और एराब लेंगे, मबनी होते हैं, इनका कोई एराब नहीं होता। ठीक है? जी मैम। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, दोबारा से इसको समझिए। जी मैम। आज याद रखने की बात यह है कि जो मुसन्ना के इशारे होते हैं, हाजानी, हातानी, जानिका, तानिका, ये मबनी नहीं होते, इनका इराब होता है, ये हालत रफा, नसब और जर सब में जाते हैं। ठीक है? आपने इशारे सिर्फ वाहिद के और जमा के, मुजक्कर मुअन्नस, इनको मबनी, ये मबनी होते हैं, लेकिन मुसन्ना के जो इशारे होते हैं ये हालत रफा, नसब और जर तीनों हालतों में जाते हैं, आपको मौका महल के हिसाब से ये मिलेंगे तीनों हालतों जी में। ठीक है? तो ये जी जरूर मैम। याद रखिए। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे जालिका, दूर का वाहिद मुजक्कर का इशारा। ठीक है? तो हम्म, पढ़िए, पहला जुमला क्या लिखा है? पहला जुमला मा ज़ालिका। मा जालिका, क्या तर्जुमा करेंगी इसका? क्या ये सितारा है? नहीं, मा जालिका में आपको कहीं सितारा नजर आ रहा है कावा? मा ये जालिका, माँ क्या है नहीं यहाँ पर? क्या? आपने नहीं, बिल्कुल सही किया, क्या? जी जी। क्या जालिका क्या का तर्जुमा क्या करेंगी? ये क्या है? अच्छा, और अगर मैं हाजा लगाऊं फिर तर्जुमा क्या करेंगी? मा हाजा? जी मैम, उससे भी तो ये खरीब के लिए और बईद के लिए अलग अलग करना है ना। तो जी तर्जुमा अलग करेंगी ना, हाजा का जी तर्जुमा जी ये से होगा, जी जालिका जी। का वो तर्जुमा वो 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 से होगा। ये है जी मैम। समझने वाली बात। अब माँ हाँ, जालिका का वो तर्जुमा क्या क्या है? करेंगी?
وہ کیا ہے، شاباش، وہ جی کیا میم. ہے، کیا جواب مل رہا ہے؟ ذالکا نجمن. ذالکا نجمن، اس کا وہ وہ بتائیے، وہ ترجمہ۔ ستارہ ہے. وہ ایک ستارہ ہے، نجم نکرہ ہے جی میم. تو ایک ضرور لگائیں گی، وہ ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ. یہاں جی پر میم. ہم نے ماں کا استعمال کیوں کیا، من کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ غیر عاقل کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے اور عاقل کے شاباش، لیے من کا. ویری گڈ، آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ غیر عاقل کے لیے ماں کا استعمال، عاقل کے لیے من کا استعمال۔ تو چلیے جی یہ میم. بھی بتا دیجئے کہ یہ ماں اور من، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ حرف استفہام. نہیں، حروف نہیں ہوتے، یہ یہ کیا بن حروف رہا ہے نہیں یہاں نا، پر؟ اس مبتدا میں ہاں، کیا بن اسم رہا ہے؟ استفہام. اس میں استفہام، جی۔ جی میم. یہ ماں اور من آپ اسماء استفہام میں ڈالیں گی، ٹھیک ہے۔ جی میم. اسماء ہاں میم. استفہام نکرہ ہوتے ہیں، لیکن ہوں. چونکہ ہوں. یہ صدارت چاہتے ہیں، یہ ہوں. جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ جملے کے بالکل شروع میں نظر آئیں گے۔ کبھی ہاں. بھی آپ کو اسم یا حرف آخر میں نظر نہیں آتا، جملے کی صدارت کرتے ہیں، جملے کے شروع میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی میم. اب جی یہاں میم. پر آپ ماں کو کیا بنا رہی ہیں؟ جی میم. وہ جملہ یہاں پر اسمیہ یہ میں جملہ ماں اسمیہ میں یہ کیا مبتدا. پوزیشن دے رہا ہے یہاں پر؟ اس کو آپ نے مبتدا بنا دیا، اور ذالکہ کو کیا بنا دیا؟ خبر. خبر. اچھا، اب یاد رکھیے کہ ذالکہ اشارہ معرفہ ہے، معرفہ ہوتا جی. ہے نا، خبر جی. معرفہ نہیں، مبتدا بنے گا یہاں پر، مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، جی میم. اور ماں خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ جی میم. ماں کو آپ خبر مقدم بنائیں گی، ذالکہ کو مبتدا مؤخر بنائیں گی، اس طرح آپ اس کی ترکیب کریں گی۔ آئیے ام معاذ، تھینک یو سلمہ، میوٹ کر لیں جزاک اور اللہ خیر. ہینڈ ڈاؤن کر لیں۔ جی میم. جی، تو آپ نے ابھی تک سمجھا کیا ہم جی نے جی. سمجھایا؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھہریں میں پیج اپ کروں، ہاں جی جی. پڑھیے۔ ہذا مسجد، یہ ہوں، ایک مسجد ہے، شاباش، وذالک بیت، ہوں، اور وہ ایک گھر ہے۔ اور وہ ایک گھر ہے، شاباش۔ اس جملے میں آپ کو دو اشارے نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی. یہ حاذا ہے اور یہ ذالکہ ہے۔ حاذا کہاں کا اشارہ ہے؟ بعید اور قریب؟ قریب. اور ذالکہ بعید. بعید کا ہے۔ یہاں حاضی کیوں نہیں استعمال ہوا اور یہاں تلکا کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کیونکہ یہ مسجد جو ہے وہ مذکر ہے اور بیت بھی شاباش، مذکر ہے۔ شاباش۔ اب یہ جملہ کون سا ہے، حاذا مسجد اور ذالکہ بیتن؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، تو آپ بیتن اور مسجدن کو کیا بنائیں گی اس جملے میں؟ یہ ہوگا خبر. شاباش، یہ خبر بن رہی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی. خبر کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. نکرہ، اور اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب مرفوع. ہم، مرفوع۔ مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کا اعراب مرفوع ہوگا. شاباش، اور اس کی وسعت کیا ہوگی؟ معرفہ. معرفہ، مبتدا معرفہ ہوگا، گڈ، آگے چلیے۔ جی. هذا حصان وذلك حمار، ہوں، یہ ایک گدھا ہے، سوری یہ ایک گھوڑا ہے اور ہوں، وہ ایک گدھا ہے۔ وہ ایک گدھا ہے، پھر قریب اور دور کا اشارہ یہاں آپ نے استعمال کیا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ حسانن کی جمع کر دیں، جی. بنائیں حصان جمع، آتی ہے آپ کو حسانن کی جمع؟ نہیں. حسنن، ٹھیک ہے۔ حسن. جی. اور حمار کی کیا جمع ہوگی؟ حمرن،
जी, हुम्रुन। अब इनके साथ जरा इशारे लगाएं। जी, हादिही हुस्नुन व शाबाश, तिलका हुम्रुन। वेरी गुड। क्यों आपने इशारे तब्दील किए, वाहिद मुअन्नस के क्यों लेकर आई? क्योंकि गैर अक़िल की जमा के साथ वाहिद मुहन्नस के वाहिद परफेक्ट, वाहिद मुअन्नस के जी, इशारे लगते हैं गैर आकिल सारे की जमा के साथ। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि इसको अगर मैं सवाल बनाना चाहूं तो जी, यहां पर कौन सा इसमें इस्तिफाम इस्तेमाल होगा, हाजा और जालिका हुरूफ से पहले? हुरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होगा हादा हिसानुन। नहीं, मैंने हिसानुन काट दिया ना। अच्छा, काट दिया है, ठीक हाँ, है। यानी हमें पता नहीं है, हाँ जी, ये पता नहीं है ये क्या है, हाँ तो जी, माँ लगेगा। जी, अस्माउ शाबाश, इस्तिफ़हाम लगेगा। हाँ जी, जी। हमारे पास हुरूफ इस्तिफाम भी हैं और अस्माए इस्तिफाम भी हैं। हुरूफ इस्तिफाम कौन से हैं? हुरूफ इस्तिफ़हाम और हल। हम्म, हाँ जी, आ और हल, ठीक है, ये हुरूफ इस्तिफाम है। और अस्माए इस्तिफाम हमने अभी क्या पढ़े? माँ मन। मामन। अब यहां मैं आपसे कह रही हूं कि अस्माए इस्तिफाम लगाएं, तो क्या लगाएंगी? माँ लगाएंगे क्योंकि गैर आकिल है। शाबाश, मा हाजा व मा जालिका, ये क्या है और वो क्या है। जी, शाबाश, वेल डन, बिल्कुल ठीक। आई एम श्योर कि आप लोगों को अस्मा और हुरूफ में फर्क समझ में आ रहा होगा। थैंक यू जी, मिमाज। शाहीना खुर्शीद, आइए। जी, जी शाहीना, पढ़िए आगे क्या लिखा है। जी। अज़ालिका कल्बुन, हम्म, क्या वो कुत्ता है? हाँ, अब ला। देखिए, खबर नकरा है ना। खबर जब नकरा है तो आप उसका तर्जुमा नकरा के मानी में किस तरह लेकर आएंगी? जी जी, क्या वो एक कुत्ता है? हाँ, क्या वो एक कुत्ता है? जी, जवाब क्या मिल रहा है? ला, नहीं। जालिका किट्टू, नहीं, वो एक बिल्ली है। हाँ, वो एक बिल्ला है, जालिका है ना। जी 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 जी। वैसे अगर दोनों के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है तो आप अगर बिल्ली भी कह रही हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब हम उर्दू जबान में मुअन्नस मुज़क्कर करते हैं तो फिर बिल्ली का मुज़क्कर बिल्ला ही बनता है। ऐसे ही है ना? जी। माँ जालिका, हम्म, वो क्या है? हम्म, जालिका सरीरुन, वो हम्म। एक बेड है, पलंग है। बेड है, पलंग है, शाबाश। यहां पर फिर मैं आपसे पूछूंगी कि माँ का इस्तेमाल क्यों किया गया इसमें इस्तिफाम में, मन का क्यों नहीं हुआ? अ, क्योंकि गैर आकिल है। क्योंकि गैर आकिल के बारे में पूछा जा रहा है। परफेक्ट हो गया, शाबाश। चलें, ये वाला हम अगले से करवाते हैं। थैंक यू, वेल डन। तहसीन अफशां, आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम तहसीन, वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जी तहसीन, पढ़िए। जी। अ, मन हाजा व मन हम्म, जालिका, हम्म, ये क्या है और वो क्या है और ये क्या है, दोनों के बारे में यही अच्छा, है। अच्छा। अब देखिए, माँ, जी आपने कहा पीछे, माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है। जी। अब मन के साथ ये क्या है, ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? ये हाजा का इशारा, सबसे पहले तो ये पहचानिए। मन तो जानदार चीज के लिए, आकिल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप आकिल के लिए मन इस्तेमाल होगा, जी जी। मन मन इस्तेमाल हाजा, करेंगी, लेकिन आप तर्जुमा किस तरह करेंगी? ये लड़के की तरफ हो रहा है ना, जी जी। लड़के की तरफ इशारा है ना। आप अगर किसी लड़के की तरफ इशारा करके ये पूछेंगी कि ये क्या है। नहीं, ये कौन है। हाँ, अब उर्दू के अल्फाज की वैरायटी आपने तरीके से इस्तेमाल करनी है ना, वोकैबलरी, जी ठीक जी है। ये जी जी कौन है, जी। आकिल के लिए आप ये क्या है नहीं पूछेंगी, ये हाँ कौन जी, है, बिल्कुल। ठीक है। और जी जी फिर ये जालिका का इशारा कहाँ जा रहा है? इन मौलवी साहब की तरफ जा रहा है। जी। और और वो वो कौन कौन, है? और वो ठीक कौन है, है। और वो कौन है, क्या जवाब मिल रहा है?
हाजा मुदर्रिसुन हम्म और वजालिका इमामुन। ये हम्म टीचर हैं, ये एक उस्ताद है और वो हम्म एक इमाम है, इमाम, वो एक इमाम है। इमाम है। वेरी जी। गुड। अब मैं आपसे कहूं कि मुदर्रिसुन को जमा में तब्दील कर दीजिए। अ, मुदर्रिसुन की जमा मदार नहीं, वो तो मुदारिस हो जाएगी। अच्छा, अ, अब ये बताइए सालिम में जाएगी जमा या मुकस्सर में जाएगी? अ, पहले मैं मुझे पता चल जाए वो अच्छा, ऊना साउंड के साथ बनाइए मुदर्रिसुन की जमा। मुदर्रिसून। हाँ जी। मुदर्रिसूना। जी। ठीक है, मुदर्रिसूना के साथ से इशारा। हाउलाई मुदर्रिसून। शाबाश। हाउलाई मुदर्रिसूना। नहीं, मुझे नहीं पता था। आइमा। आइमा। ठीक है, अच्छा। आइमा, आइमा कराम हम कहते हैं ना। हम अम, अक्सर कहते हैं ना आइमा कराम सब जमा थे, उलमा और आइमा कराम कहते हैं जी ना। मैम कभी। इमामुन की जमा आइमा। अच्छा ठीक अक्सर है। हम सुनते हैं, देखिए उर्दू में हम ये अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, जी ठीक है। जी मैम लेकिन कभी ध्यान नहीं जहन दिया। में हाँ कोई जी। बात नहीं, अब आपको याद रहेगा। अब मुझे जी जी। बताइए इसके साथ आप कौन सा इशारा लगाएंगी? आइमा के साथ। उलाई, उलाई का आई, वेरी आई गुड। मुना इसको करेंगे हम। नहीं, आइमुना नहीं, आइम्मा बस। आइमा। अच्छा, हाँ जी, उलाई का आइमा। एक्चुअली आइम्मतुन होगा। ठीक है, ठीक है। इसको एंड आप आइम्मतुन पर करेंगी। अब आपने हम्म, समझा कि यहाँ पर हा उलाई और उलाइका का इशारा आपने आराम से इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आकिल की बात हो रही थी। जी ऐसे ही जी। है ना। अगर हाँ यहाँ जी। गैर आकिल की जमा में आपसे कहती तो फिर आप कौन से इशारे लाती? फिर माँ का इस्तेमाल करते हैं। माँ। नहीं नहीं, माँ इशारे की हाँ पूछ रही हूं मैं जी। आपसे। मैं इस्तिफाम अच्छा नहीं अच्छा। पूछ रही हूँ, आप इशारे कौन से जी लाती जी। अगर गैर आकिल की जमा होती तो? अ, अगर मैं यहाँ पर अब वाबुन कर देती, अब वाबुन जी जी। कर देती, फिर तो यहाँ इशारा उसका कौन सा आता? हाज ही, करीब के लिए हाज हाँ ही जी, अबवाब तो आता है। वाहिद मोन्नस का इशारा आता ना फिर। ठीक है, जी जी, वाहिद वाहिद मोन्नस, मुअन्नस का। हाजी या फिर तिल का। राइट। ये आप लोगों ने टिप्स पे रखनी जी है, जी। चीजें जहन में पक्का रखना है। आइए जनाब, राना इरशाद, थैंक यू जी तहसीन। जी। जी राना, क्या लिखा नजर आ रहा है आपको आगे बोर्ड पे? स्क्रीन माँ पे क्या जालिका, नजर आ रहा है? हाँ जी, माँ जालिका। तर्जुमा? वो क्या है? वो क्या है। अब इससे आप क्या पहचानने में आ गई? सवाल और तस्वीर अगर आपके सामने ना हो, ठीक है, आप देख नहीं रही अगर इस तरफ, और आपसे कोई पूछे माँ जालिका, तो आपके जहन में क्या सबसे पहले बात आएगी कि पूछने वाला किसके मुताल्लिक पूछ रहा है आपसे? गैर आकिल के। गैर आकिल के बारे में, यानी जो भी चीज के बारे में पूछा जा रहा है जो अभी आपके निगाह के सामने नहीं है, वो यकीनन गैर आकिल है। फिर आप देखेंगी, आपको कंफर्म हो रहा है कि हाँ जी ये गैर आकिल है। आपने क्या जवाब दिया? वो हाँ एक जी, पत्थर है। वो एक पत्थर है। जी। जी। हाजा हम्म सुक्करुन हम्म व जालिका लबनुन। हम्म ये ये शक एक हम्म हम्म। लगेगा, ये एक शक्कर है। और ये भी नहीं कहते ना, कलेक्टिव जी नाउन है जी। ये। शक्कर है और वो वो शक्कर है और वो दूध है। उर्दू में समझदारी से जब हम तर्जुमा करेंगे, कॉमन सेंस के साथ हमने इस बात की रियायत रखनी है, उर्दू जुबान की भी रियायत, कि हजर उनकी जमा बना दें। जी। हजर उनकी जमा क्या होती है? हिजारुन। हाँ जी, हिजारुन भी होती है, हिजारतुन होती है, या फिर अहजारुन। ठीक है, ये भी होती है जी। और हिजारतुन भी होती है। राइट। अब इसका वाहिद मुअन्नस लगेगा तिल का।
हाँ जी, वेरी गुड, तिल का हिजारतुन, शाबाश, वेल डन, थैंक यू। आइए जोहरा, आ जाइए जोहरा, आपको रिक्वेस्ट आई, पहुंची जोहरा, देखें। जी हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम जी। जोहरा, कोई जी, कंफ्यूजन अभी तक आपको नहीं नहीं, कुछ नहीं। इशारों में? नहीं, चलें कुछ जल्दी नहीं। से मुझे इशारों का चार्ट सुना दें जल्दी से, करीब ओके, भाई दोनों। ठीक है। हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये हम्म मुज़क्कर, और मोनस हम्म के लिए हाजिही, हातानी, हाउलाई, और हम्म इशारा बईद में हम्म जालिका, दानिका, उलाइका, और हम्म मोनस के लिए तिलका, तानिका, उलाई, वेरी उलाइका, गुड। सॉरी, उलाइका। उलाइका मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, जमा के लिए हाँ, उलाइका का है। पढ़ें आगे, क्या लिखा है? इकरो, वक्त, वक्तुब, हम्म तम तमरीनुन। तमरीन, जी यानी कि एक्सरसाइज पे हम आ गए जी हैं, ठीक है, अरबी में तमरीन कहते हैं जी। जी। क्या लिखा है? फर्स्ट वन, हाजा सुक्करुन हम्म वजालिका लबनुन। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपसे दोबारा रिवाइज करवाया जा रहा है। जी, देखिए इसमें जेंडर का पता चल रहा है, जिन्स का पता चल रहा है कि हाजा ये से पता मुजक्कर है या चलता है, मुअन्नस, इशारे से। इशारा से। तो हाँ जी, कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपको समझ ना आ रही हो कि क्या जिन्स है, तो हम इस तरह से भी पीछे जाके इशारा चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना? जी ओके, जी। आगे एक क्या है डाउट जुमला? था, नहीं, जी। अगर हम लोग नकरा के लिए कुछ हम्म शक्कर ऐसा कुछ लगा सकते हैं क्या, अगर कुछ ये कुछ आएगा कुछ ना? चीनी है, जुमला सही हाँ, से बन नहीं रहा ना, अच्छा, ठीक है है, ना? ओके, उर्दू हाँ, में, उर्दू की जुबान के लिए, या ये कुछ कहते हैं ना, हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ, तो जी हम सही, उर्दू जुबान की रियायत करते हुए जी। कुछ और कोई या एक का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अरबी कायदे के हिसाब से हमने कौन से जुमले बन रहे हैं दोनों, हाजा सुक्करुन वजाले का लबनुन? जुमला इस लाइक, जुमले इस्मिया, हाँ हाँ, हाँ जी। खबर क्या होती है? नकला होती है। नकरा होती है, मरफू और जी, नकरा। ठीक है, इसका हमने क्या हाँ, है? मन दालिका, दालिका हम्म इमामुन, वो हम्म यहाँ पर फिर दोबारा इन्होंने आपको क्या समझाया है कि चूंकि आकिल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए जालिका मन, कौन से, हाँ इस्तेमाल हाँ, हुआ है, जी, मन यूज किया है आखिर के में, मान हाँ, इस्तेमाल हुआ है। अगर गैर आकिल होता तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते? जैसे नीचे ही लिखा हुआ है, मा हाजा, हाजा हाँ हजर। जी। फिर दोबारा से ये इन्होंने रिवीजन के लिए आप लोगों से फिर पूछ रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये हमजा इस्तिफाम आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? कौन से, मन और मा तो अस्माए ये इस्तिफाम है। सर्कल किया है ना, स्क्रीन पे जी नजर हाँ, आ रहा है आपको? जी जी जी, हाँ, अजालिका, ये 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 हर्फ है उर्फ है, या इस्म है? हर्फ है। हर्फ है, ठीक है। जी, हर्फ, ये जुमले में क्या बन रहा है यहाँ पर? अ, हमजा इस्तिफाम जुमले में क्या बन रहा है? जैसे यहाँ पर मा खबर मुकद्दम बन रहा था, है ना? जी हाँ हाँ, मन लाइक भी खबर इसका, मुकद्दम, इसका हमजा को इस्तिफाम क्या बन रहा है? वो, इसका कोई स्टेटस नहीं रहता है। शाबाश, वेल डन। क्यों, क्यों नहीं होता? रीजन बताइए। आ, वो मुब्तदा भी नहीं बनता, खबर भी नहीं बनता, नहीं बन रहा ना, रीजन बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, स्टेटस नहीं होता, क्यों? इसलिए कि ये हर्फ है, हर्फ हर्फ है। का कोई स्टेटस नहीं होता। ओके, जी इसलिए रीजन आपको पता होना चाहिए ना। स्टेटस आपने कहा नहीं होता, बिल्कुल सही हाँ, कहा, जी, लेकिन क्यों नहीं होता? इसलिए कि ये हर्फ है। अगर ओके, इस्म होता फिर उसका स्टेटस होता, जी ठीक है? तो जी, इस्म का स्टेटस होता है, हर्फ का कोई कोई स्टेटस नहीं होता, जी ठीक है? अब जी, जालिका कित्तुन में
मुझे बताइए कि जालिका को क्या स्टेटस देंगी आप? जालिका लाइक मुब्तदा होगा। शाबाश, जालिका को हम मुब्तदा बना देंगे और क़ित्तुन को क्या ख, बनाएंगे? खबर होगा या नकीरा खबर होगा। बना देंगे। माशाअल्लाह। अब ये जालिका इस्म है ना, जी। तो इसने मुब्तदा का स्टेटस ले लिया। ठीक है हाँ। है ना? अब जी। ये देखिए ला, इन्होंने जवाब मनफी दिया है। ला, ये ला क्या है, इस्म है या हर्फ? हाँ, हर्फ होगा। नहीं हर्फ पता। है। वेरी गुड, शाबाश, हरफे नफी। हरफे नफी, ठीक है। हरफे ठीक है ना? इस्तिफाम में हल और हमजा आता है, इसको हाँ हरफे जी, नफी। ओके, ये हरफे हरफे नफी। नफी है, इसका भी कोई स्टेटस नहीं है ला का। ओके। हर्फ कोई सा भी हो, कोई स्टेटस नहीं होगा। जबकि फिर आगे आप जालिका कल्बुन में जालिका को क्या बना रही हैं? जालिका मुब्तदा है यहाँ पे, शाबाश। और कल्बुन को खबर है। खबर बना रही हैं। परफेक्ट, माशाल्लाह। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जोरा। आइए समीना, जजाकल्ला खैर। या की। जी जी, अस्सलाम समीना। वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। अब देखें हमारे सामने क्या लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, न्यू वर्ड्स में अरबी क्या लिखी हुई है? अल कलिमातुल जदीदतु हम्म। अल इमामुन। कलिमातुल जदीदतु यानी न्यू वर्ड्स, ऐसे ही है ना? जी, जी, जी। मैं अगर आपसे कहूं इससे पहले कोई इशारा लगा दें, दूर का और करीब का, क्या लगाएंगी? अल कलिमातु, हम्म। ये तो कलिमात क्या है, जमा है या वाहिद है? जमा है बाजी। जमा है। इसकी वाहिद क्या है? कलमा। कलिमा। बिल्कुल। कलिमतुन, ऐसे ही है ना? जी, जी। कलिमतुन, ठीक है। कलिमतुन की जमा हो गई कलिमातुन। अब कलिमातु। चूंकि ये अल लगा हुआ है, उसकी वजह से ये तनवीन, है ना, जी, 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 तनवीन जी, हल्की हो हाँ। जाती है ना। जी, अच्छा, हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि अल कलिम, चलें अल को छोड़ दें आप, जी। इसको छोड़ दें। अगर मैं आपसे कहूं कली मातुन, इससे पहले इशारा लगाएं, चलें ये करें। अभी आप लोगों के लिए वो एडवांस है थोड़ा। जी। कलिमातुन। कली मातुन से पहले जरा करीब का इशारा लगाएं, क्या इशारा लगाएंगी? ये हाजिही कलिमातुन। शाबाश, हाजिही कलिमातुन। और दूर का इशारा? हाँ उलाई। क्यों हाउलाई, क्यों? ये दूर का आकिल इशारा की, बोलिए। आकिल की बना रही हैं आप जमा, या गैर आकिल की बना रही हैं? गैर गैर अकल की जमा है। हाँ, तो फिर दूर का इशारा भी वाहिद मुअन्नस का आएगा ना। वाहिद मोहनस ही आता, हाँ हाजिही कलिमातुन। यस। ये तो करीब का इशारा है ना सबीना। दूर का इशारा क्या होगा वाहिद मुअन्नस का? ओ, वाहिद मोहनस का दूर का इशारा वाहिद हाजिही। मुअन्नस का दूर का इशारा जिल्ले हुमा। आइए। तानिका, तानिका, तानिका। ताने का तो मुसन्ना का इशारा है। चलिए मुझे जरा समीना वो सुनाइए, चार्ट सुनाइए इशारों का। अम, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ठीक हाता, है। हाजिही, हातानी, हाउलाई। हम्म। तिलका, सॉरी। तिलका, हाँ। तानिका, उलाइका। आगे। जानिका, जालिका, उलाइका। हाँ, फिर आपने मुअन्नस जालिका, मुजक्कर ऊपर जालिका। नीचे किया। हाँ, हाँ। ऊपर नीचे कर दी, हाँ जी हाँ बाजी, वो ठीक है, मुंह कोई पे बात ऐसी नहीं। है आज। अब मुझे जी, जी। बताइए यहां पर दूर का इशारा क्या लाएंगी? तिलका बाजी। तिल का लेकर आएंगी, ठीक है। जी, याद रखिए इस जी, बात को। जी। ओके, गुड हो गया, इंशाल्लाह। थैंक यू। आइए जिले हुमा। जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ये जो अल कलिमातुल जदीदतु में कौन कौन से कलिमे आपने सीखे, वोकैबलरी में आप लोगों की इजाफा करने के लिए इन्होंने अलग से एक ग्रिड बनाई हुई है। और जिसमें अगर जिसको नहीं पता कि पत्थर को या शक्कर को या दूध को क्या कहते हैं, उसके इन्होंने नाम दिए हुए हैं। आप लोगों ने इसको याद भी रखना है, और अपनी कोई नोटबुक अगर आपने वोकैबलरी की बनाई है तो उसमें नोट डाउन कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई अरबी पूछे तो आपको इनकी वोकैबलरी आती हो। ठीक है। जी
तो जी आज का सबक तो हमारा यहीं तक का था। चलें, अब आप आई हैं तो मुझे जरा सुना दें जल्दी से इशारे। इशारे हाजा, सुन। हम्म। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हम्म। हाजे ही, हातानी, हाउलाई। और शाबाश। दूर के जालिका, जानिका, उलाइका, हम्म। तिलका, तानिका, उलाइका। ठीक है, गुड हो गया। मैं आपके सामने एक जुमला लिख रही हूं। हाजा वलदुन। जी। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। ये एक लड़का है। ये एक लड़का है। अब मैं आपसे कहूंगी कि वलदुन की जमा बना दें। वलादुन की जमा। हम्म। हम्म, वलादुन, बच्चा, औलादुन। बच्चे। औलादुन, यस। ठीक अब है। इशारा लगाइए। हाउलाई, औलादुन। शाबाश। हाउलाई औलादुन, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं, ये पढ़िए जरा, क्या हाजे लिखा ही, है। हाजे ही बिनतुन। शाबाश, तर्जुमा। ये एक लड़की बच्ची है, है। हाँ, लड़की है। बच्ची है या लड़की है। अब इसको जरा जमा में जुमला बनाइए पूरा। हाउलाई, हम्म। बिनातुन। शाबाश, हाउलाई बिनातुन, परफेक्ट हो गया, वेल डन। अब मैं आपसे कहूंगी कि आपने यहां पर बिनातुन के साथ हाउलाई का इशारा क्यों लगाया। आप वाहिद मुअन्नस का इशारा क्यों नहीं लेकर आई। क्योंकि ये आकिल है। क्योंकि ये आकिल की जमा है। ठीक है, आकिल की जमा। इसलिए। जी हाँ जी जी, गैर आकिल होता तो फिर हम लेकर आते। वेरी गुड, थैंक जी। यू जुलेमा। सबा अरसलान, आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम जी। अब मैं आपके सामने जुमला लिखती हूँ। अ, चले, मैं एक इस्म लिखती हूँ। अब मैं आपसे कहूंगी कि इसका करीब का इशारा लगाएं। नाफिजतुन। नजर आ रहा है आपको हम्म, लिखा हुआ। जी ठीक है। मैम आ रहा है। नाफिजतुन। नाफिजतुन की क्या वो होती है, मतलब क्या होता है। तर्जुमा अम, किसको कहते हैं नाफिजतुन। मैम ये मोनस में आता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। आई एम श्योर कि आप लोगों को आज रिवीजन हो गया होगा। कोई मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इज देयर एनी कंफ्यूजन। चलें, गुड हो गया। अ, हम फिर क्लास का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं और इस बात की शहादत देते हैं कि तू ही माबूद है, और तुझ ही से बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौटते हैं। अस्सलामु अलैकुम।